हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विधि एंड मैं आ गई हूँ खुले में आपसे खुल के बात करने के लिए। और ये स्टूपिड लाइन मैंने अभी नीचे से आते हुए ही सोचा है। इफ़ इट वर्क्स इट वर्क्स, इफ़ इट डजंट वर्क फॉरगिव मी प्लीज़। ओके, सो आज हमारे कंडीशंस थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज अपनी खुद की मैट लेके आए हैं, अपने जूते के ऊपर नहीं बैठना पड़ रहा है। सो यस, टुडे वी आर प्रिपेयर्ड। आई एम प्रिपेयर्ड बेसिकली। ओके, so today's video is going to be things I wanna leave behind in 2024. The first thing I wanna leave behind in 2024 is doubting myself. You know, there is this little voice in your head. You can't do it. You won't be able to do it. It is bad. You shouldn't do it. I am gonna leave that voice behind in 2024, and in 2025 I'm gonna go full in. Whether it is content creation, starting a business, I'm not gonna think about if I'll be successful or I'm gonna fail in it. I am gonna try doing everything. So the next thing I wanna leave behind in 2024 is no taking risk. Whether it is fashion or anything in my life, I never used to take risk. I was always in my comfort zone, but this year I tried taking risk, and trust me, I felt really good. So from next year onwards, from 2025, I am gonna step out of my comfort zone and take risk. Whether it is fashion or anything else out there, I am going to take risk. The next thing I wanna leave behind in 2024 is perfectionism. Honestly, what I felt this year is perfection doesn't exist, and aiming for it only slowed me down in my life. Whether it is small things like perfect hairstyle, I end up keeping my hair basic just because I look for perfection. I do not want to put myself in a position that, okay, I made a mistake, I learned from it. I want everything to be perfect somehow. I wanna leave this in 2024 only. Next year is only going to be for progress, happiness, change, and trying new things maybe. The next thing I want to leave behind in 2024 is overspending. Yes, overspending. Raise your hand if you have ever gone over budget this year. Guilty, guilty, guilty. Although I have saved some money this year, I tried, not saved, I tried, but next year I'm gonna try harder and save some more money. So next year we are not gonna overspend, we are gonna do budgeting, we are gonna save some money, we are gonna be happy, but we are also gonna save some money. Let's see if I'll be able to be happy and save money at the same time, because money makes you happy, money makes me happy. I like eating sushi, I like buying. Nowadays, I also like buying. So let's see if I'll be able to be happy without spending money. Okay, another thing I wanna leave behind in 2024 is people pleasing. मैंने notice किया है, I do try very hard to please everyone, even if I am making a video. For example, मैंने Big Boss का review देखा आपने, और मैं देख रही हूँ मैं किसी की बुराई ही नहीं कर पा रही हूँ. At the end of the video और in between, लोगों की बुराई करने के बाद भी, थोड़ा बहुत भी बुरा बोलने के बाद भी, I am saying वैसे दे आर गुड पीपल, वैसे दे आर गुड पीपल. आई मीन, ऐसा नहीं है आई एम सम सेंट, मैं बुराई नहीं करती हूँ, मैं गोसिप करती हूँ अपनी बहनों के साथ में बैठ के, मैं दुनिया भर की गोसिप करती हूँ, अपनी मम्मी के साथ में बैठ के मैं दुनिया भर की गोसिप करती हूँ. बट स्टिल देयर इज मेरे हेड में एक छोटू सा नीड टू प्लीज एवरी वन, विच आई डोंट वॉन्ट टू डू in 2025. I just want to change this people pleasing habit of mine. The next thing I want to leave behind in 2024 is, it is little difficult, but sugar. I know everyone should leave sugar, but I am literally addicted to it. आई लाइक कलाकंद, आई लाइक गाजर का हलवा, आई लाइक मम्मी मेरी दोधा करके एक बर्फ़ी है, तब भी मम्मी बुलंदशहर या गाज़ियाबाद जाती तब भी मेरे लेके आती हैं, क्योंकि मेरे को दिल्ली का दोधा वाला जो बर्फ़ी होता है बीकानेर वाले का, वो बहुत टेस्टी लगता है. यहाँ का उतना अच्छा नहीं लगता है, पर दिल्ली में जो बनाते हैं, अगर मेरे को शुगर क्रेव होता है और मैं नहीं खाती हूँ तो मैं, मेरा एनर्जी लेवल गोज़. And it is not a secret that sugar is bad. Everyone says it, even doctor says it. It is out there on internet. Google it, sugar is bad. I cannot quit it like this, but I will try to minimize my sugar intake in next year. The next thing I want to leave behind in 2024 is micromanaging. I do try to micromanage my life. I do try to micromanage itti si cheez in my life. For example, everyone knows I film videos and everything. I do full-time job. I am working on something else as well. Or I have to hire an editor.
बट आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई डू नॉट ट्रस्ट पीपल इनफ कि वो मेरा काम वैसे करेंगे जैसे मैं करती हूँ अपना खुद का काम. आई एम नॉट बीइंग एबल टू लेट गो of things I should let go. The next thing I want to leave behind in 2024 is my screen addiction. Okay, so मैं सुबह उठती हूँ, सुबह से मेरे हाथ में फ़ोन होता है, देन उसके बाद मैं नहाती धोती हूँ, तैयार व्यार होती हूँ ऑफिस जाने के लिए. फिर उसके बाद जैसे मैं घर से निकलती हूँ मेरे हाथ में फ़ोन होता है. आई स्टार्ट रीडिंग और स्क्रोलिंग और वट एवर, फ़ोन मेरे हाथ में होता है. मैं ऑफिस जाती हूँ, लैपटॉप या सिस्टम मेरे सामने होता है. सो कॉन्स्टेंटली आई एम ऑन स्क्रीन उस टाइम पे भी. देन मैं ऑफिस से निकलती हूँ, फ़ोन मेरे हाथ में होता है, पूरा टाइम फ़ोन मेरे हाथ में होता है. तब मैं घर पे आती हूँ, उसके बाद खाना वाना खाना है, जो भी करना है, मम्मी के साथ मैं टीवी देखती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ स्क्रीन. टीवी देखती हूँ, जो भी करती हूँ वो होता है. उसके बाद मैं अपने रूम में जाती हूँ, मेरे आईपैड पे मैं कुछ देखती हूँ, जो भी मेरा फेस चल रहा है उस टाइम पे, टर्किश सीरीज़ का चल रहा है, कोरियन सीरीज़ का चल रहा है, जो भी मेरा फेस चल रहा है, आई विल वॉच दैट फॉर एन आवर और सो. उसके बाद I'll take my phone, I'll read, then I'll sleep. Then सुबह से वही cycle continues. So I am on my phone 24/7 somehow. The only time I'm not on my phone is while I'm sleeping. So it's sad. Although in 2024 मैंने पेपर बुक्स खरीदना शुरू कर दिया है, मैंने फ़ोन में रीड करना कम कर दिया है, बट स्टिल इट इज़ एक्सपेंसिव. इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, नॉट लिटिल, इट इज़ a lot expensive. For example, मैं Kindle का 169, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस अभी क्या है, बट अंडर 200 मैं पे करती हूँ एवरी मंथ. और आई रीड अनलिमिटेड बुक्स, और जो भी जॉनरा का मुझे चाहिए, मुझे वेट नहीं करना होता. मुझे कोई बुक का रिकमेंडेशन मिला ऑनलाइन, मैंने जाके खोला, मुझे मिल गया, मैंने पढ़ लिया, वैसा वाला हो गया. बट पेपर बुक्स के लिए क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है कि हाँ कल जाके खरीदूंगी, परसों जाके खरीदूंगी. ऊपर से बुक्स आर एक्सपेंसिव ब्रो. जो बुक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, विच आई वॉन्ट टू keep in my collection, for example the Palace of Illusion, the Forest of Enchantment, और मेरा Game of Thrones का सीरीज़, हैरी पॉटर का बुक, ये सब बुक्स मतलब जो मेरा फेवरेट है, जिसको मैं अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहती हूँ, उन पे पैसा खर्च करना मुझे उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता. बट द थिंग आई एम गोना रीड वंस एंड नॉट गोना लुक एट अगेन, वाई वुड आई स्पेंड 300, 350 और 400 रुपीज़ ऑन इट. इवन आजकल लोकल मार्केट में जो सेकेंड प्रिंट होता है या जो भी वो बुक होता है विच इज़ नॉट ओरिजिनल, मतलब जो प्रिंट करके वो सेल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो 200 रुपीज़. मुंबई में मैं स्टेशन से खरीदती थी 150 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का. बट आई एम गोना फाइंड न्यू हॉबी जो मतलब जो फ़ोन से रिलेटेड नहीं हो. आई एम गोना ट्राई एटलीस्ट. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू लीव बिहाइंड इन 2024 इज़ आई कांट नैरेटिव. कोई भी चीज़ करने से पहले जो मेरे दिमाग में छोटू सा एक वॉइस होता है जो मुझे बोलता है आई कांट डू दिस, आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस, आई शुड एटलीस्ट ट्राई. बट वो जो छोटू सा वॉइस होता है विच सेज आई कांट, वो ट्राई करने से भी रोक देता है. सो इन 2025 आई एम गोना ट्राई एवरीथिंग न्यू. आई एम नॉट गोना लेट दैट आई कांट decide whether I should try something or not. We are gonna try everything in 2025. Let's promise each other that. Maybe I'm gonna try, maybe I'm not gonna try, maybe I'm gonna chicken out from this. The next thing I wanna leave behind in 2024 is junk food. Yeah, I do eat a lot of junk food. I do not carry tiffin with me ऑफिस के लिए, so I eat out दिन में. फिर शिवी 1-2 महीने के लिए आती है, फिर शिवी कहती है ओके मैं भी रोज़ रोज़ नहीं खाती हूँ, अब हम तीनों साथ में तो खाते हैं. फिर हम तीनों साथ में खाते हैं. फिर क्या होता है, फिर शिवी वहाँ पे कुछ खा रही होती है, मैं और लकी वीडियो कॉल पे होते हैं. फिर हम कहते हैं तू ये खा रही है तो हमारा भी खाने का मन कर रहा है. फिर हम ऑर्डर करते हैं, फिर हम उसको खाते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है हम कुछ खा रहे होते हैं, वो हमको देख रही होती है, वो कहती है तुम लोग ये खा रहे हो तो मेरा भी ये खाने का मन है, वो ऑर्डर करके उधर में वो खाती है. सो इट्स अ साइकिल. तब शिवी आती है तो हम ये बोल के खाते हैं कि हम लोग साथ में नहीं रहते हैं अभी, जितने टाइम के लिए हम साथ में, हमको एंजॉय करना चाहिए. तो हम दूर दूर रहते हैं तो एक दूसरे को कॉपी करके खाते हैं और इतना जंक फूड खाते हैं कि हर तरफ से निकलता है. मेरे को तो मुझे ऐसा लगता है एक्सरसाइज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता. आई एम एज इट इज़. जितने दिनों से आई एम ट्राइंग कि मैं अपने आप को थोड़ा शेप में ले आऊँ, नहीं हो पा रहा है मेरे से. आई ट्राइड एंड आई फेल्ड इन 2024. सो 2025 में वी आर नॉट गोना ईट टू मच जंक फूड. So the next thing I wanna leave behind in 2024 is comparison. I do not wanna compare my growth. I do not wanna compare my skin. I do not wanna compare my body size. I do not wanna compare my accent. I do not wanna compare my language. I do not wanna compare anything. My hair, my eyes. I do not wanna compare anything with anyone else out there. I just wanna be me. I just wanna be there. I just wanna live. I just wanna be happy. दैट्स ऑल. इतनी चीज़ें छोड़ेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें छोड़ दूंगी. आई वॉन्ट बी मी. अगर मेरे अंदर कोई कमी नहीं होगी, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी. हाउ वुड आई बी मी?
How? I wanna be me. Okay, so those are the things I'm leaving behind in 2024, and that's all for this video. Let me know in the comment section what are the things you are saying goodbye to this year. And if you like this video, please give me a thumbs up. And if you didn't like this video, it's okay. You might like something in future. For that, you have to subscribe to my channel. So do that. Bye.